Hello guys, welcome back to another video of TCS Baba. So already I have discussed about GS paper 2 or GS and language paper 1 and 2, what type of questions were there, and GS 2 mein what type of changes that you have seen from the previous year question, the changes that TPSC is expecting. এখন I will discuss about GS paper 4 মানে ইকোনমিক্স वाला पेपर যেটা in economics wala paper there is a huge sort of transition, the way TPSC used to ask question and where TPSC is asking question right now. So stay tuned till the end of the video to entirely understand ki see this in this video I will not tell you how to study or what to study, but you have to first understand what is the pattern of question or how TPSC is thinking about asking the question. That basically makes the base for you to start your preparation. उसी तरीके से प्रिपरेशन करना है. एंड आई थिंक इट्स राइट टाइम टू से कि गॉन आर द डेज जहाँ पे only just mugging up some pointers, some topics will get you to clear the gates of TPSC. नहीं, ऐसे नहीं होने वाला है. TPSC is changing, it's maturing. Already I have discussed about that, and right now we will see what is happening with GS paper 4. तो यहाँ पे what I have is this is 2019 का GS 4 का पेपर, this is 2020 का GS पेपर 4, and this is 2023 का GS paper 4. We will go section by section, analyze what type of question used to come and what type of question has come this time. So section 1, this is the syllabus. Section 1 is Indian economy, poverty, unemployment and inflation. तो 2019 में कैसा टाइप ऑफ क्वेश्चन आया था? पोस्ट रिफॉर्म सिनेरियो में जॉबलेस ग्रोथ था. Why we cannot calculate national product simply by adding up the production of all farm? What is structural unemployment? Topic is unemployment. What is structural unemployment? GDP, national income is there. इसके बारे में directly question came. तो very simple question. If we go to 2020, what is per capita income? भाई इससे आसान question I think in no other exam has come. What is the difference between GDP and GNP? मतलब क्या ही बताऊँ मैं. Explain the relationship between poverty, inequality, growth. Very easy question, all of this section A पे. Now come to 2023. Now you will see 2019 में फिर भी they were not directly asking एकदम टॉपिक से. 2020 में तो they directly asked from the topic, एकदम definition type पूछ लिया. 2023 में क्या हुआ? Do you think that Green Revolution expands the regional inequality in India? Give reasons for your answer. What are the major causes of income inequality between organized and unorganized sector? Evaluate the government policy for removal of unemployment in India after 2010. देखो, ग्रीन रिवोल्यूशन कहाँ से आया? दिस केम फ्रॉम एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड सर्विस सेक्टर. ठीक है, ग्रीन रिवोल्यूशन यहाँ से आया. डू यू थिंक ग्रीन रिवोल्यूशन एक्सपांड्स द रीजनल इनइक्वालिटी? अब इसके साथ इनइक्वालिटी का मैच कर दिया. गिव रीजन्स फॉर योर आंसर. सो दे आर नॉट जस्ट आस्किंग फ्रॉम वन टॉपिक, दे आर मिक्सिंग एंड मैचिंग मल्टीपल टॉपिक्स इनसाइड द सेक्शन एंड गिविंग यू एन एनालिटिकल, जहाँ पे लॉजिकल रीजनिंग तुमको लगाना होगा. उसी तरीके से सोच के यू हैव टू राइट द आंसर. मेजर कॉजेज ऑफ इनकम इनइक्वालिटी बिटवीन ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर. ये सेक्टर इज़ देयर, सेक्टर इज़ हियर, बट दे आर आस्किंग अबाउट इनकम इनइक्वालिटी. तो फिर यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, ऑल दिस थिंग्स मिक्सड एंड मैच्ड, दिस क्वेश्चंस आर कमिंग. ठीक है. इवेलुएट गवर्नमेंट पॉलिसी फॉर रिमूवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया आफ्टर 2010. दे आर नॉट आस्किंग व्हाट टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट आर देयर, व्हाट इज़ दिस टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, व्हाट इज़ फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट. ऐसा डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछ रहे. दे आर आस्किंग भाई क्या पॉलिसी लिए गए थे फॉर रिमूवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. यहाँ पे मतलब सी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ का डायरेक्टली ऑब्वियसली यू वुड हैव स्टडीड, बट डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन from the policy point of view, how the changes in policies have taken place to address unemployment, as a type of question TPSC has not asked yet.
बट नाउ दे आर आस्किंग, नाउ सेक्शन बी में चले जाते हैं. सेक्शन बी इज़ अबाउट कंसेप्ट ऑफ बजट, फिजिकल, मॉनेटरी पॉलिसी, उन सब चीज़ों में पहले क्या पूछा गया था, व्हाट इज़ बजट डेफिसिट, सिंपल डायरेक्ट डेफिनेशन, हाउ डज इट अफेक्ट इंटरेस्ट रेट, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, व्हाट आर ऑटोमेटिक स्टेबिलाइजर इन फिजिकल पॉलिसी, व्हाट आर CLR SLR, मतलब और क्या सिंपल क्वेश्चन पूछ सकते हैं. नेक्स्ट 2020 में वाई इंडियन बजट इज़ ऑलवेज डेफिसिट बजट, how the tools of fiscal policy are used to control inflation, very easy question. GST has changed the financial relation between center and state, explain. All these are मतलब at least these two are very, in a sense these three are relatively easy question, directly to the point from the syllabus point of view से directly question पूछ दिए गए. अब GS4 इस बार क्या पूछा गया देखते हैं. सेक्शन B, what is UPI, discuss its effect on common man in India. ऐसा कोई डायरेक्ट क्वेश्चन है नहीं, टॉपिक है नहीं. RBI इज़ देयर, इफ़ यू कैन लिंक RBI UPI, although UPI is the brainchild of NPCI, बट स्टिल RBI इज़ देयर, तो फिर यू कैन मैच इसके साथ थोड़ा सा. एक्सप्लेन GST रेवेन्यू शेयरिंग बिटवीन स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंटर स्टेट फिनेंशियल रिलेशन इज़ देयर, तो उस वहाँ से आया है. डू यू थिंक GST शेयरिंग हैज़ मेड स्टेट फिनेंशियली वीक. सी, first portion of this is not a 5 mark question, plain and simple. This is not a 5 mark question. One sec, this is not a 5 mark question, but 5 mark पे इसको लिखना within 250-300 words is difficult. is difficult in a sense क्योंकि तुमको वही एकदम क्रिस्प पॉइंट वो सब लिखना है which are most important regarding this. बट यहाँ पे सेकंड पोर्शन, डू यू थिंक GST शेयरिंग हैज़ मेड स्टेट फिनेंशियली वीक, यहाँ पे यू आर सपोज टू थिंक अबाउट हाउ द GST शेयरिंग, जहाँ पे स्टेट इज़ शेयरिंग इट्स इनकम टू द सेंटर, there is a disproportionate ratio between how much money the state is giving to the center and how much funding the center is giving to the state. तो यहाँ पे उन सब चीज़ों को लेके you have to analyze and write the answer. तो यहाँ पे again compared to 2019 and 2020 डिफरेंस है भाई, डिफरेंस है. क्वेश्चन टाइप ऑफ पैटर्न ऑफ क्वेश्चन पे डिफरेंस है. What are the major causes of rise in public expenditure in India in recent times? Generic question है, but this is a very economy, Indian economy portion का काफ़ी अच्छा एनालिटिकल क्वेश्चन है. नाउ नेक्स्ट आते हैं बैंकिंग, मनी सप्लाई, शेयर मार्केट, इसके रिगार्डिंग सेक्शन C पे. व्हाट इज़ लिक्विडिटी ऑफ मनी, हाउ इज़ इट रिलेटेड विद इंटरेस्ट रेट, रोल ऑफ इंटरमीडियरीज इन फिनेंशियल मार्केट. उसके बाद क्या है, व्हाट कंस्टिट्यूट्स करेंसी इन सर्कुलेशन. एकदम प्लेन सिंपल डेफिनेशन पूछ लेते हैं भाई 2019 में. 2020 में क्या किया, व्हाट आर गिल्टेज सिक्योरिटीज, अगेन डेफिनेशन, लिक्विडिटी प्रेफरेंस और वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल मार्केट. मतलब कैपिटल मार्केट इज़ ए टॉपिक, कहा गया मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट इज़ ए टॉपिक, पूछ लिया व्हाट आर द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल मार्केट. मतलब ऑब्वियसली इफ यू हैव स्टडीड कैपिटल मार्केट यू हैव स्टडीड द कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल मार्केट. वो स्ट्रेट कट, इट्स लाइक ए स्कूल कॉलेज का क्वेश्चन लग रहा था 2019-2020 का. कम 2023 सेक्शन C, व्हाट इज़ चीप मनी पॉलिसी एंड व्हेन इट इज़ जनरली अडोप्टेड. ठीक है, रिलेटिवली ईजियर डायरेक्ट डेफिनेशन. डिस्कस द रोल ऑफ रूरल बैंक्स टू सप्लाई एग्रीकल्चरल क्रेडिट इन रिसेंट टाइम्स इन इंडिया. नाउ दिस इज़ थोड़ा सा डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन. नॉट ओनली रूरल बैंक्स, उनका रोल स्पेसिफिक टू एग्रीकल्चरल क्रेडिट इन रिसेंट टाइम, वो KCC VCC वो सब लोन एंड एवरीथिंग दैट यू हैव टू मेंशन हियर, एंड द वेरियस टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चरल क्रेडिट, सिक्योरिटीज़, इंश्योरेंसेस, जो चीज़ें रूरल बैंक के थ्रू गवर्नमेंट पासेस ऑन टू द रूरल एरियाज, तो regarding those you have to write. So this is not a simple and easy question to answer. थोड़ा सा सोच के, थोड़ा सा दिमाग लगा कि you have to answer. यहाँ पे आता है रोल ऑफ कमर्शियल बैंकिंग, बैंकिंग सिस्टम, इन सब चीज़ों का से क्वेश्चन डायरेक्टली, मतलब क्वेश्चन यहाँ से आया है, बट इट्स ए मोर एनालिटिकल क्वेश्चन हियर. Examine the role of SEBI to control capital and money market in India. So relatively simple question. SEBI है, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया SEBI से. ठीक है. नाउ कमिंग टू सेक्शन D, क्या है, सोशल सिक्योरिटी मेजर्स इन इंडिया विद स्पेशल रेफरेंस टू त्रिपुरा. जाते हैं यहाँ पे.
Differentiate between social security, social assistance. Simple question. Social security schemes for senior citizens. Direct question पूछ लिया. Recent initiatives of government for development of infrastructure in Tripura. Generic question है, simple question है. 2020 में क्या पूछा गया? Recent initiative taken by government to improve educational status. तो एजुकेशन है ही, तो फिर ऑब्वियसली यू हैव स्टडीड, पढ़ ही चुके, मतलब आंसर लिख ही देते आराम से. डिस्कस इकोनॉमिक पोटेंशियल ऑफ ट्रेड थ्रू इंलैंड वाटरवेज. राइट शॉर्ट नोट ऑन हेल्थ केयर सिनेरियो इन त्रिपुरा. सिंपल क्वेश्चन, जो भी टॉपिक में है उसके बारे में यू हैव स्टडीड, तो यू कैन इजीली राइट 5 मार्क का क्वेश्चन. कम 2023. एक्सप्लोर द पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑफ अखाउरा रेल लाइन ऑन त्रिपुराज इकोनॉमी एंड रीजनल ट्रेड. भाई देखो कितना करंट अफेयर्स को मिला के, स्टेट को मिला के, इकोनॉमी को मिला के. इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन स्पेसिफिक टू त्रिपुरा, बट थोड़ा दिमाग लगाना होगा, थोड़ा सोच के आंसर लिखना होगा. सिर्फ इफ़ यू हैव द नॉलेज देन इन द एग्जाम हॉल यू हैव टू एनालाइज एंड पुट इट इन अ ब्यूटीफुल वे. नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है? डिस्कस द मेन फीचर ऑफ DAY NRLM, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन इन त्रिपुरा ड्यूरिंग 2018-22. अच्छा क्वेश्चन है. डिस्कस ब्रीफली अबाउट स्टेट रिफॉर्म एक्शन प्लान 2020 ऑफ इंडस्ट्रीज इन त्रिपुरा. देखो डायरेक्टली यहाँ पे किसी एक स्पेसिफिक एरिया के बारे में नहीं पूछा, एजुकेशन हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में डायरेक्टली नहीं पूछा, बट दे हैव गॉन स्कीम स्पेसिफिक. किसी एक, इफ़ इट इज़ सॉरी रूरल लाइवलीहुड मिशन ना, सोशल सिक्योरिटी मेजर्स, वहाँ पे आ जाएगा ये सब चीज़ें. स्टेट रिफॉर्म एक्शन प्लान वो ऑफ इंडस्ट्रीज़, तो फिर इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ देयर, तो इससे रिलेटेड है ये चीज़. बट इन अ सेंस व्हाट it means is now you can't just read basic definitions and features of these topics. You have to deep dive into क्या स्कीम क्या चालू है त्रिपुरा में, उस वाले सेक्टर से, एजुकेशन हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर. what are the schemes related to that, what are the features of those schemes, what is the performance of that scheme. ठीक है, how is that scheme being helpful in ensuring कि that sector flourishes. तो उस तरीके से सोचना होगा अभी. एंड भाई आई एम लाइकिंग दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन. थोड़ा एनालिटिकल है, थोड़ा सोचने के लिए मजबूर करता है द कैंडिडेट्स. तो फिर दिस इज़ ए गुड वे ऑफ टेकिंग द एग्ज़ाम, आई वुड से. सेक्शन ई पे जाते हैं. द चैलेंजेस फेस्ड बाय त्रिपुरा टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट फॉर इट्स इंडस्ट्रियल गुड. 2019 का ये है. डिस्कस द टू सेक्टर विच प्ले मेजर रोल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट. लिस्ट एट लीस्ट 5 हॉर्टिकल्चर क्रॉप, 5 क्रॉप प्रोड्यूस विच हैव हाई सिग्निफिकेंस. क्या क्वेश्चन था भाई, इजी. How state government is helping in upgrading rubber plantation. Name at least 5 natural resource. Discuss sectoral distribution of workforce in Tripura. 2023 में क्या पूछा गया? State government of Tripura formulated a 10-year perspective था कि prospective था, for achieving self-sufficiency in food grain production. Discuss the 5 salient outcome of such perspective plan. Kreflet is an Indo-German bilateral project in Tripura. Discuss about the 5 project outputs in last 7 years. How does the availability of natural resource impact the industrial development of Tripura. ठीक है, तो इस तरीके से they have covered industry, they have covered forest also, this Indo-German forestry also, but they have gone scheme specific. See, scheme specific, policy specific they have gone. डायरेक्टली वहाँ से क्वेश्चन पूछ रहे हैं. दे आर नॉट आस्किंग द टॉपिक एंड एक्सपेक्टिंग यू टू राइट अबाउट द स्कीम, रेदर दे आर आस्किंग अबाउट द स्कीम एंड एक्सपेक्टिंग यू टू राइट अबाउट द टॉपिक. उल्टा हो गया. ठीक है. ई के बाद अभी नेक्स्ट क्या जाते हैं. नाउ दीज आर द बिग क्वेश्चंस. बिग क्वेश्चन पहले क्या आते थे? सेक्शन ए, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑन कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर्स. What are the policy measures to check high rate inflation? Very easy question. What are the reasons behind slow growth of agricultural sector? What is its consequence? 2020 रूरल अर्बन गैप क्या है? ICT कैसे कंट्रीब्यूट कर सकता है? डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ GDP. अरे यार इतना इजी क्वेश्चन. इस बार क्या पूछा? व्हाट डू यू थिंक अबाउट द क्राइसिस इन इंडियन एग्रीकल्चर इन रेस्पेक्ट ऑफ फार्म साइज एंड प्रोडक्टिविटी. Discuss your view in this regard in the backdrop of subdivision and fragmentation of holding.
ब्यूटीफुल क्वेश्चन एंड वेरी एनालिटिकल क्वेश्चन. मुझे तो ये यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन लग रहा है. Evaluate the sectoral changes in national income in last 10 years in India. Evaluate the sectoral changes in national income in last 10 years in India. Do you think India leads to a service led growth? भाई मुश्किल लग रहा है. इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन वेरी एनालिटिकल. नेक्स्ट सेक्शन बी में जा रहा हूँ. सेक्शन बी कंसेप्ट ऑफ बजट में. सेक्शन बी में गवर्नमेंट कैन फंड पब्लिक स्पेंडिंग थ्रू टैक्सेशन बोरोइंग. डिस्कस पॉसिबल कंसिक्वेंस. डिस्क्राइब रोल ऑफ सेंट्रल बैंक एज रेगुलेटर. 2020 में क्या पूछा गया? एक्सप्लेन विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी. व्हाट इज इन्फ्लेशन, कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन. क्या यार, क्या इजी. 2020 गाइस, दिस वाज एन इजी एग्जाम. एक्सप्लेन द रोल एंड फंक्शन ऑफ फिनेंस कमीशन विद क्रिटिकल असेसमेंट. एक इजी क्वेश्चन पूछ लिया. व्हाट आर द मेन डिफरेंस बिटवीन कंडीशनल एंड अनकंडीशनल कैश ट्रांसफ़र इन इंडिया. भाई मस्त क्वेश्चन है. Do you think that unconditional cash transfer program is quite successful in India, majorly in last 5 years for the removal of mass poverty? देखा कैसे कैसे करंट अफेयर्स के साथ रिलेट करके दे आर आस्किंग द क्वेश्चन. उसके बाद क्या है? बैंकिंग मनी सप्लाई, शेयर मार्केट. एक्सप्लेन हाउ द क्रिएशन ऑफ क्रेडिट बाय कमर्शियल बैंक कैन हैव मल्टीप्लायर इफेक्ट ऑन मनी सप्लाई. ये मनी सप्लाई ऑफ मनी का मनी मल्टीप्लायर इफेक्ट यू हैव स्टडीड, तो फिर आराम से लिख सकते हो. व्हाट इज़ कैपिटल मार्केट, और उसके बारे में थोड़ा सा इस पे 2020 में क्या था? रोल ऑफ कमर्शियल बैंक इन क्रेडिट क्रिएशन. मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट आर इंटररिलेटेड. शॉर्टकमिंग्स ऑफ इंडियन कैपिटल मार्केट. इस बार क्या पूछा गया? सेक्शन सी, बैंकिंग मनी सप्लाई. व्हाट डू यू मीन बाय आउट ऑफ पॉकेट हेल्थ एक्सपेंडिचर. Discuss the rationale of improvement in Indian scenario in terms of household level health expenditure. Wonderful question. सही में wonderful question. What is Vande Bharat Express? Discuss its impact on the following: economy of India, national pride. Not only current affairs, but linking current affairs with economy. अच्छा क्वेश्चन है. ऐसे नहीं लिख सकते जस्ट बाय स्टडिंग द टॉपिक ऑफ द सिलेबस. नहीं लिख सकते. टीपीएससी हैज़ एंटायरली चेंज द गेम. मुश्किल होने वाला है कोचिंग सेंटर को भी. द कोचिंग सेंटर हैज़ टू ऑल्सो बकल अप. नॉर्मल आई थिंक, आई डोंट नो दिस टीपीएससी कंबाइंड एंड अदर एग्ज़ाम कंबाइंड 2 विल हैपन, तो उस पर देखा जाएगा व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन आर दे आर गोना आस्क. बट TCS एज सच, उसका लेवल हैज़ गॉन वे अप कंपेयर टू लास्ट 2 years, मतलब लास्ट 2 attempts. ठीक है, तो सेक्शन डी में देख लेते हैं. सोशल सिक्योरिटी मेजर्स में डिस्कस इम्पैक्ट ऑफ सुकन्या समृद्धि योजना लॉन्च बाय गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा ऑन फिनेंशियल सिक्योरिटी ऑफ गर्ल चाइल्ड. इवेलुएट द प्रोग्राम्स अंडरटेकन बाय NHM इन त्रिपुरा. रिलेटिवली जेनेरिक क्वेश्चन. उसके बाद लास्ट सेक्शन ई, some steps taken for the promotion of tourism in Tripura by state government. Suggest some steps to be taken for promotion of tourism in Tripura by state government. What are the initiatives that private sector common public can take to play a role to support the state government in this effort? बहुत ही एनालिटिकल क्वेश्चन है. Means if you are studying about tourism in Tripura, then obviously you are studying about the tourism potential of Tripura. Second, you will be studying about various policies being taken by Tripura government or central government to improve the scenario of tourism in Tripura. But यहाँ पे they are not asking about policies that are in effect in Tripura. नहीं, they are asking something else. They are asking कि इनको छोड़ के suggest something else, कुछ नया आइडिया बताओ. And those ideas can be generic, but it's like 7 + 7 14 marks. Initiatives that private sector कैसे help कर सकता है. So you have to have a very good knowledge about the current scenario of tourism in Tripura. At the same time, you have to have a good knowledge about how it is happening outside of Tripura. दूसरे states पे कैसे कर रहे, क्या कर रहे governments regarding the promotion, and what the private sector is also doing for the promotion of tourism. क्या कर सकते हैं, तो वहाँ से थोड़ा ideas लाके यहाँ पे लिखना होगा. Interesting question.
Discuss performance of ASSP in Tripura in last 5 years. At what level ASSP is successful to solve द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन द स्टेट. ये भी थोड़ा स्टेट स्पेसिफिक क्वेश्चन है. इफ़ यू नो अबाउट द स्कीम, लेबर डिपार्टमेंट का स्कीम है, इफ़ यू नो अबाउट द स्कीम देन यू कैन राइट द आंसर. बट एज सच आई डोंट नो, दे आर गोइंग really deep into the topics and different है. It's analytical. I think you got the idea regarding कैसा type of question TPSC is asking right now. Mere mugging up and reading the basic books will not help. कैसे क्या करना है, let me figure out something and in upcoming videos I'll discuss about that. चलो, thank you, bye.